Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, in today's class, we will start with a new chapter. The name of the chapter is The State Executive. This is a chapter number 3. Hope after study this chapter, you find this chapter very interesting and you get to know lots of important facts. Hope you love this chapter, and by this chapter you can learn so many new things. So हम शुरू करते हैं अपना chapter number 3 of your civics books. So आप नाम से समझ पा रहे हैं, इस चैप्टर में हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो स्टेट में लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं. वी नो द पार्लियामेंट हैज 3 organs. One is legislature, second one is executive, and third one is judiciary. So हम सेकेंड पार्ट जो एग्जीक्यूटिव का वो पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, जो स्टेट उस पे अपना लॉस को इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, सो shall we start this chapter? Yes? Okay, students. So, in this chapter, Parliament and the state legislature carried out the task of making laws. Parliament, अगर हम बात करें पूरे कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दे कैन फ्रेम. स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स आर देयर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन स्टेट and making laws which are there in their state list and making laws for the state. Okay, the executive of the union government execute the central laws. हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल ने लॉ बना दिए गए हैं उसका काम करना है एग्जीक्यूट, उसको लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव का है. इट कॉम्प्राइज द प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर होते हैं विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स आर देयर हु हेल्प्स टू एग्जीक्यूट लॉ इन अ कंट्री. व्हाट आर दे? President, Vice President and Prime Minister. The duty of the state executive is same as those the central government but the subordinate level. वो वैसे ही काम करती है जैसे हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव और जैसे हमारी पार्लियामेंट काम करती है, बट इसका जो लेवल है स्टेट एग्जीक्यूटिव का वो थोड़ा सा कम हो जाता है. पार्लियामेंट का थोड़ा दायरा ज्यादा है, स्टेट लेवल का तो स्टेट लेवल पे थोड़ी लिमिटेड हो जाती है उसकी फिर पावर एंड लिमिटेशंस. द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज कंप्राइज. स्टेट में कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है. स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? फर्स्ट वन इज गवर्नर, सेकेंड वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स. इसमें हम गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे क्योंकि ये दोनों हमारी लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं. दे टू आर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द लॉ इन आवर कंट्री. Powers are divided between center and state governments. As we know, powers are equally divided between a center and state by their list. We know the union list, we know the state list, we know the concurrent list. In which state list, the state government make the law, union list, which the central government make the law, and in concurrent list, both center and state make the law. So the powers is equally divided. The state executives carried out to making the state laws. They can make the state law. The state executive executes these law in the state. The state executive is composed of governor and chief minister and the council of minister. जो अभी हमने बताया कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, हमारे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड देयर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, जो उसके और मिनिस्टर्स होते हैं वो. सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द गवर्नर. राजभवन कोलकाता की ये पिक्चर दे रखी है. गवर्नर. Each state consists of a governor. He is the constitutional head of the state. वो गवर्नर को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि गवर्नर सबसे पहले आता है, देन चीफ मिनिस्टर आएंगे. ठीक है. अपॉइंटमेंट गवर्नर का कैसे होता है?
The governor is appointed by the President of India. Who appoint the governor? President of India appoints the governor. While appointing a governor, the President of India act as the advice of Prime Minister. So, President will be take the advice of PM, Prime Minister, and appoint a governor. Okay, so this is the process of how the governor is appointed. They can appoint by president, but president can take the advice of prime minister, and prime minister will tell he or she become the governor of that state. Then the president will appoint he or she be the governor of that state. Sometime one governor can be appointed for 2 or more state or union territories. एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, ये चेंजेस भी होते रहते हैं कि पहले ऐसा था कि कोई एक गवर्नर जो एक स्टेट के साथ किसी दूसरे स्टेट को भी संभाल रहे थे. ठीक है, सो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या योग्यता होती है? इफ यू वांट टू बिकम अ गवर्नर, सो यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. With that, you have to be 35 years of age. With that, you don't have any profit, hold any office of profit. Conventionally, he or she should not pertain to state where he is appointed. Okay? So these are the qualification of the governor. सबसे मेन आपको 35 years याद रखनी है, जो आपको काफी पूछी जाती है कि गवर्नर के लिए मिनिमम एज it is 35 years of age. Oath of office. Before entering upon the office, the governor take an oath from office before the chief justice of concerned high court. So oath कौन देता है? देखिए, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ने कर दिया, ओथ देने का काम चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का करेगा. जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल यूपी के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो उसके यूपी के जो लखनऊ हाई कोर्ट है, उनकी जो चीफ जस्टिस है, वो उनसे ओथ डलाते थे. तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव देम ओथ. ओथ देखते हैं ना, ओथ शपथ ग्रहण होता है ना, तो वो उनको ओथ दिलाएंगे. कौन? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, हाई कोर्ट, क्योंकि ये स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ स्टेट में तो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है. तो हाई कोर्ट उस स्टेट का वो उसको ओथ दिलवाते हैं उस गवर्नर को. एंड अगर वो एब्सेंट है चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का, तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज उसके बाद, जो उनके बाद सीनियर मोस्ट जज होगा, वो उनको ओथ दिलाएगा गवर्नर को. ठीक है, अब उसका टर्म क्या होता है, कितने टाइम के लिए गवर्नर विल बी इन देयर ऑफिस, अपने ऑफिस में रहते हैं, मतलब देयर टाइम पीरियड. सो देयर टाइम पीरियड इज the governor is appointed by the president for the term of 5 years. 5 years तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. However, he hold office during the pleasure of president. अगर president उसको बढ़ाना या कम करना चाहे, तो president can do it. After that, the expiry of term, he can be reappointed. उसको फिर से reappoint भी कर दिया जा सकता है गवर्नर को. आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, if they are doing their work well, so they can have the chance to be reappointed, but can be removed by the president even before the expiry term. देखो, उसको रीअपॉइंट तो कर ही सकता है, उसके साथ साथ उसको वो अपनी पोजीशन से हटा भी सकते हैं. ठीक है, he can resign earlier due to the health reason. also वो रिजाइन भी कर सकते हैं. देखिए, गवर्नर को हम हटा भी सकते हैं, रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, और वो खुद भी हट सकते हैं, खुद भी रिजाइन दे सकते हैं. ठीक है, रिजाइन किसको देंगे? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे. ठीक है, क्योंकि अपॉइंट किसने किया था उनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. पर ओथ किसने दिलाई थी, मुझे बताइए? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ने. सैलरी कितनी होती है? देखिए, सैलरी ऑलमोस्ट लिखी है 3 लाख के करीब, आप समझ सकते हैं. एंड उसके साथ उनको अदर अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री रेसिडेंशियल से लेके सारी चीजें उनको मिलती है, आपको पता होगा. ठीक है, of course when you are holding any government position, you get government facilities, whether it is a health, related to residential, related to if you are in officer rank, you get the vehicles also. These are the basic facilities that are given to a government servant. So power and function of a government. So what are the powers that are given to the governor? So one by one we can read all the powers. First one is
एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूट की पावर है गवर्नर के पास, मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन बने हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम है गवर्नर का। ही कैन एग्जीक्यूट हेड ऑफ द स्टेट, देखिए हेड ऑफ द स्टेट कौन है, गवर्नर बोला जाएगा, ठीक है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम्स, इन हिज नेम्स, ठीक है। उसी के नाम पे होगा कि गवर्नर के नाम पे जो भी चीजें होगी स्टेट में वो की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ अदर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है, देखिए एक हायरार्की है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया गवर्नर को, गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। He make high appointments like those advocate general जो स्टेट के हैं, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन, और काफी और पब्लिक हाई प्रोफाइल उनको भी वो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। स्टेट में जो भी काम होगा विद द नेम ऑफ गवर्नर के रहेगा। फोर्थ क्या उनका है, ही ऑल्सो कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट इन मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो प्रेसिडेंट के साथ सलाह मशवरा मतलब डिसीजन या फिर बातचीत कर सकते हैं अगर उनको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, ठीक है। दे कैन टेक डिसीजन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑल्सो, ओके। सेकेंड उसकी पावर है लेजिस्लेचर, लॉ बनाने की भी गवर्नर के पास पावर है। फर्स्ट द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन बिगिन विद द एड्रेस ऑफ गवर्नर, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है स्टेट लेवल पे तो जो फर्स्ट सेशन होता है वो एड्रेस करते हैं गवर्नर, ठीक है। सेकेंड द समन एंड प्रोग्रेस ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ही ऑल्सो डिसॉल्व द विधानसभा ऑल्सो। देखिए अगर सब कुछ उल्टा, देखिए यूनियन में अगर सेंट्रल पार्लियामेंट लेवल पे अगर लोकसभा को भंग करना था तो किसके पास पावर थी, प्रेसिडेंट के पास। इनमें अगर क्योंकि स्टेट लेवल पे तो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उसको अगर डिसॉल्व करना है तो किसके पास पावर है, गवर्नर के पास। बिल्कुल सेम पावर है जैसे स्टेट में प्रेसिडेंट के पास, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास पावर थी, वैसे स्टेट पे गवर्नर के पास वो सारी पावर है जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखी थी। जो प्रेसिडेंट के पास पावर है सेंट्रल पे, वैसी स्टेट पे गवर्नर के पास है, ठीक है। थर्ड every year the first session of the state legislature also begin with the address of governor, ये तो अभी मैंने बताया, जो फर्स्ट सेशन होगा उस नई गवर्नमेंट का वो कौन सबसे पहले करेगा, गवर्नर, ठीक है। फर्स्ट सेशन गवर्नर लेंगे। थर्ड द बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर सब्जेक्ट टू हिज assent, उनको पास करवाना पड़ेगा। जैसे उसमें जैसे सेंट्रल में क्या होता था, लोकसभा राज्यसभा ने कोई लॉ बनाया उसको लास्ट में फाइनल प्रेसिडेंट करते थे, वैसे यहाँ पे अगर वहां पे विधान परिषद भी है मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है उस स्टेट में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो लॉ बनाए हैं वो गवर्नर उसको साइन करेंगे, ठीक है, तभी वो लॉ उस स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा। जब तक गवर्नर साइन नहीं करेंगे तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। Third, fifth, in case the legislature is not in session, he may promulgate any ordinance to meet the requirement of the situation, तो वो ordinance भी कर सकते हैं। ordinance एक पावर है गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास होती है। इसमें क्या होता है, अगर सेशन नहीं चल रहा है, हमें 3 सेशंस पता है पार्लियामेंट के भी होते हैं, वैसे ही अगर स्टेट में उस टाइम पे वो विधानसभा अभी सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा लॉ बनाना है जो इमरजेंसी में या फिर कोई उस टाइम पे जरूरत है उसको बनाने की, तो गवर्नर उसको बना सकते हैं। सिक्स्थ में बोला है ही हैज द पावर टू एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू सेंड रिटन मैसेज टू इट, ठीक है, उसको एड्रेस करना है तो वो कर सकते हैं गवर्नर। Annual report of various agencies such as Public Service Commission etc. are submitted to him. वही सोली रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें कोई रिपोर्ट्स है तो उसको सबमिट होगी, लास्ट में कोई बिल पे साइन करना तो गवर्नर के होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड है फाइनेंशियल पावर, क्या होती है गवर्नर की, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधानसभा विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, अगर मनी बिल स्टेट में प्रेजेंट करना है तो उसकी नोटिस, उसका प्रायर इंफॉर्मेशन गवर्नर को देना
पड़ेगा। पार्लियामेंट में भी देखा था, मनी बिल में पावर किसकी थी, लोकसभा की थी, वैसी स्टेट लेजिस्लेचर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर है मनी बिल में, ठीक है। बट गवर्नर को पता होना चाहिए पहले से, उसकी प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, गवर्नर पहले पास कर दिया होना चाहिए। बिफोर the commencement of every financial year, he lays the annual budget through the financial minister before legislature, ठीक है। वो हर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले वो अपना बजट फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्रस्तुत करेगा। उस जब फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करेंगे तो उनका भी होना जरूरी है। तो पता है ना, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 31 ऑफ मार्च पे खत्म होता है, नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है ना। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ देखिए कंटेजेंसी फंड स्टेट का भी होता है, जिससे क्या होते हैं, जो भी स्टेट में अगर जो भी सबको इनकम्स वगैरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको कंसोलिडेट फंड से मिलती है। और कंटेजेंसी फंड ये होता है कि इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई, फ्लड आ गया है, या वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे इमरजेंसी में फंड निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नर के पास वो पावर है कि वो वहां से फंड निकाले और वहां उसको यूज कर सके, ठीक है। ये है हमारी पावर्स। फोर्थ है जुडिशियल पावर, क्या होगी जुडिशियल रिलेटेड टू, पता है, हाई कोर्ट से रिलेटेड हो जाएगी। ही डिसाइडेड मैटर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, देखिए वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स का, और किसी ऑफिसर को प्रमोट करना है या किसी की पोस्टिंग करनी है, किसी का अपॉइंटमेंट करना है जजेस का, तो वो कर सकते हैं। हु, गवर्नर। He possesses the power of granting pardon, देखिए पार्डन पावर भी है। पार्डन मतलब अगर किसी को माफी देनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई क्राइम किया और उसको उम्र कैद की सजा हो गई, तो उसको कम करनी है, या फिर उसको कोई लिमिटेड टाइम के लिए 10 साल के लिए करनी है, या किसी को ऐसी सजा हो गई डेथ की एकदम सजा सुना दी तो उसको थोड़ी कम सजा करनी है, या उसको बिल्कुल ही माफ कर देना है, तो वो सारी पावर हमारी गवर्नर के पास होगी। सो ये सारी पावर्स हमारी गवर्नर के पास होती है, चाहे जुडिशियल पावर हो, चाहे फाइनेंशियल पावर हो, चाहे लेजिस्लेटिव, चाहे एग्जीक्यूटिव, ये सारी पावर्स है। कुछ मिसलेनियस पावर भी है कि इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे जब इमरजेंसी लग जाती है, जैसे प्रेसिडेंट रूल आपने सुना होगा बच्चों, किसी किसी स्टेट में लग जाता है, तब अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो गवर्नर की पावर हो जाती है फिर, ठीक है। तब तो इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट जो सारी चीजें जो गवर्नर कहेगा वही प्रेसिडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की पावर हो जाती है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों की। ओके, पोजीशन ऑफ अ गवर्नर, गवर्नर की पोजीशन के बारे में हम देखते हैं। द फंक्शन एंड द पावर ऑफ गवर्नर आर वेस्ट इन द स्फीयर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ही इज नॉट ओनली द हेड ऑफ द स्टेट, he is also the agent of the central government, क्योंकि ये जो गवर्नर है his position has been beautifully summoned up the following word: the governor is the constitutional head of the state just as president is head of the, ये जो मैंने अभी आपको बताया इसकी पोजीशन सेम है जैसे प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट को आप यूनियन पूरे इंडिया के लिए एक मानते हो, वैसे स्टेट में एक तरीके से एक हेड है, वो हमारा गवर्नर है। प्रेसिडेंट और गवर्नर रूल, क्या होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर रूल? इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, देन द गवर्नर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर ही एडवाइस करता है कि यहाँ की जो विधान सभा है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है और मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी हो जाती है कि एक ऐसी स्थिति जब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अपना खुद से ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते। सच रिकमेंडेशन मेड बाय गवर्नर, वो गवर्नर ये रिकमेंडेशन देता है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट confidence of majority of member in assembly and a few minister cannot easily transform their complete breakdown हो जाता है जब उस स्टेट में, तो गवर्नर उनको कहता है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए।
In such situation, the governor send a report to president. If the president dismiss that the minister of the state on the basis of the report and suspend and dissolve, फिर उसको वो dissolve कर दिया जाता है और वहां पे लग जाता है हमारा president rule. In such circumstances, the governor became the real and effective ruler. तब चीफ मिनिस्टर का भी कोई रोल नहीं होगा. जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब गवर्नर के पास सारी पावर आ जाएगी. तो जैसा प्रेसिडेंट बोलेगा गवर्नर वैसा करेगा. इसको लगाने के पीछे भी गवर्नर का ही हाथ होता है, प्रेसिडेंट रूल. ये आर्टिकल नंबर 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात किया गया है. अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या है. जो प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो चीफ मिनिस्टर के साथ और मिनिस्टर्स रहते हैं ना, जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के साथ अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं. डिफेंस मिनिस्टर से लेके आपके रोडवे मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर्स, है ना, आपके फॉरेन मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर. वैसे ही आपके अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो चीफ मिनिस्टर के साथ उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं जो डिफरेंट पॉलिसीज फॉर्मेशंस में ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्या रोल है उनका? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाने का. द फर्स्ट important function of a council of minister is to formulation of policy on the basis of which administration of the state is conducted. So first work is to make the policies. सेकेंड, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का उसको कंट्रोल करके रखना. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं उस स्टेट के. ठीक है. नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. स्टेट में अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली फंक्शन करें, ये भी अलग अलग मिनिस्टर्स का काम होता है. इसलिए अलग अलग मिनिस्टर्स को अपनी अलग डिपार्टमेंट, अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन हो पाए एक स्टेट का. सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ स्टेट. अपॉइंटमेंट्स. अब अपॉइंटमेंट्स देखते हैं. ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्टेट आर डन बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं गवर्नर को और गवर्नर फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर. ठीक है. फिफ्थ है लेजिस्लेटिव फंक्शन. लॉ बनाने का भी उनके पास दामोदार है. ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द गवर्नर डिसाइड्स टाइम ऑफ समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ द लेजिस्लेचर. The governor's speech of legislature is beginning in the new session. और किस तरीके से हमने ये चीजें देखी कि हमारा जो सेशन है उसको कब खत्म करना है, कब फिर से चालू करना है, या फिर अगर हम बात करें क्या चीज की कि जो फर्स्ट सेशन जब अपॉइंटेड होती है तो फर्स्ट सेशन कौन लेता है? गवर्नर लेते हैं. फाइनेंशियल पावर्स भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, बजट वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स दे हैव फाइनेंशियल पावर. अब चीफ मिनिस्टर की भी पावर होगी कोई ना कोई, है ना. तो गवर्नर फर्स्ट पे है, फिर तो चीफ मिनिस्टर आता है. हर स्टेट्स के डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स होते हैं. As we already read, governor is the executive head of the state, but the real head of the state is chief minister. देखिए अगर आपसे कोई पूछे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर. रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही तो गवर्नर वर्क करेगा. गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा, जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताएंगे गवर्नर को वही तो वैसे करेगा. अब चीफ मिनिस्टर का काम भी यही है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर्स को फॉर्म करना, उनकी अपने पोर्टफोलियोज देना उनको. ठीक है. द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है तभी गवर्नर उसको अपॉइंट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो देने का, ये डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर एंड सुपरवाइज देयर वर्क. देखिए उसको रीशफल भी कर सकते हैं. ठीक है. उसको अलग अलग पोर्टफोलियोज, आपको रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का, आपका रेलवे, आपका स्पोर्ट्स, अलग अलग पोर्टफोलियो सब मिनिस्टर्स को दे दिए जाते हैं. तो उनको अलग अलग पोर्टफोलियो देना और फिर चेक भी करना कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे. रीशफल भी कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं. चीफ मिनिस्टर किसी प्रेसिडेंट को, किसी मिनिस्टर को रिमूव करना है, शफल करना है, ये सारी पावर चीफ मिनिस्टर के पास है. प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ द council, he summon the meeting of the council and preside over them. ठीक है. कोई मीटिंग हो रही है तो उसको प्रिसाइड करना, डिसाइड वेदर एजेंडा ऑफ मीटिंग, ये सारी चीजें.
तो जो गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक पैदा करते हैं वो चीफ मिनिस्टर दोनों के साइड उसको काम करना, उसने प्रेसिडेंट के साइड, गवर्नर के साइड भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइड भी, ठीक है। ही इज द मेजर लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। इफ द constitutional obligation is communicated all decision of council of minister to be the governor, अगर वहां प्रेसिडेंट रूल या कुछ ऐसा लग जाता है तब ये लिंक नहीं हो पाता, तब तो गवर्नर के पास ही सारी पावर है, तब गवर्नर को चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेगा। तब तक के लिए चीफ मिनिस्टर को एक अच्छे, अगर ये हमारा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है उसकी बात कर रही हूँ, तब उन तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। किस किस को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर को। चीफ स्पोकमैन ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से जो बोलने वाला कौन होगा? वहां का चीफ मिनिस्टर होगा, उसको ये अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है। फिर है चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नर, ही इज द एडवाइस, उसको अगर गवर्नर को एडवाइस चाहिए होगी किसी भी मैटर पे तो कौन देगा? चीफ मिनिस्टर ही देगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट, ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट तो भले ही वो गवर्नर करता है बट एड एंड एडवाइस किसकी लगती है? चीफ मिनिस्टर की लगती है। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं उनको। तो हमने ये चैप्टर में देख लिया किस तरीके से गवर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड चीफ मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये दोनों की वजह से एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वजह से एक स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाती है। और स्टेट का हेड कौन है? गवर्नर। पर रियल एग्जीक्यूटिव हेड पूछे तो कौन है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो एक स्टेट के जितने भी रूल रेगुलेशंस पॉलिसी बननी होती है उसको देख रेख करने का काम होता है गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। आई होप दिस चैप्टर फाइंड यू वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा लगा आपको पढ़ने में, मजा आया? चलिए फिर अब आपसे आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।